हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने अभी तक रेजिस्टेंस को देखा है, राइट, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज हम हमेशा सिंपल सर्किट से तो डील नहीं करेंगे, राइट। तो अब जो है हम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमें थोड़े डिफरेंट और थोड़े अजीब से हमको सर्किट्स दिखाई देंगे, और वो होगा किसकी वजह से? कॉम्बिनेशंस की वजह से, कि हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं रेजिस्टर्स को, और राइट, कितने वेज हैं और क्या होता है जब हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं तो करंट कैसे बदलता है, या फिर करंट चेंज होता है या नहीं, या फिर हर किसी में सेम करंट जाता है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, राइट। And that's what we do study here, right? We do prepare for the school examinations, क्योंकि school examinations में भी आते हैं, and such type of question do appear in the Olympiads level examination. So we are covering the both, right? You are going to be prepared for both the examinations, for the school examination as well as for the Olympiads level, all right? And for the 9th 10 we do cover with the NTSC, NSC, JS and PRMO. So that would be so much beneficial for you all if you study hard with us, and that's all you have to do is, right? If you want any DPP and study material, you can definitely access them through our Telegram channel. All you have to do is to go on the Telegram app, write the code TTB010 for you all, right? Then you will be joining the channel, and that's it. Then you will be getting all the DPPs and study material over there. All right, so that would be very much beneficial. Now let's see. This is the team which is working very hard for you all, and really trying to bring the education that is very much you can say important for you all, right? We are doing very much hard work and provide you the quality education you deserve. All right, and that's why we are here. And the thing I wanted to tell you is that ki some students find studying very hard, all right, by themselves, all right. So that's why there is a need for the teacher or the organized material or the testing method, the whole process. There is a need, obviously. So that's why we have prepared some packages for you all right. And to access that packages, all you have to do is to go on this website www.talkingtextbooks.in. You have to go on that website. You will be getting such type of packages over there. This is just an example, all right. So you will be getting this type of packages for all the classes. There are two type of packages. The number one is for the whole study, right? The whole structure. You will be getting the study material, all right, in a very much structured manner, so that you can learn things step by step, right? So that would be very much beneficial. Second thing what you will be getting is the bi-weekly quizzes. You will be getting tested twice a week. And then you will be getting feature of homework submission, where you will be submitting your homework and we'll be checking that. And you will be definitely getting the recorded and live classes. And the final thing, you will be getting the periodic test papers. That means you are going to be tested twice a week, like 2 weeks, all right. Every 2 weeks you will be getting tested periodic test papers, and the pattern of that test papers will be the exact pattern of the final examination. So you will be getting familiar with the process, like which questions come up, like easy or moderate or hard. You will be getting all such things, right? The second package is the test series, all right. That means that's just included the test series. All of the students who wants to know where they stand in their preparation, they should join that, right? What you will be getting in the test series is periodic test papers, bi-weekly quizzes, and recorded lectures, recorded and live classes, right? So that what you will be getting in the test series. If you want definitely, if you want a discount code, you can definitely write CY Live. All right, if you write here CY Live, then you will be getting 30% discount on both the packages. You can definitely choose any package, that's your choice. All right, now all you have to do is to click on buy package, and then you will be forwarded on all the options. If you have any query regarding what are the packages, what can be the features, how you will be benefited from it, so you can definitely call us on this number, all right. And we will be very much happy to help you and resolving all your queries regarding anything through about the packages and about the everything whatever you want to know, all right. So that is the important thing we have prepared you for. All right, now let's see.
what we are going to study, the series and the parallel combination of the resistors. So we will be dealing with the you can say various combinations, either the series, either the parallel, or both. All right, some circuits include both the combinations. So that what we'll be studying today. Now let's talk about this, that you have to do what? You have to promise yourself. You have to promise yourself that you will be watching the whole lecture. Alright, you will be making proper notes and you will be revising it, because अगर आप स्टार्टिंग से ही रिवाइज करेंगे दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, और आपको लास्ट में मैसअप होने की जगह पे आप एक कूल माइंड से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. राइट, तो दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू, दैट यू बिकम स्मार्ट स्टूडेंट एंड डेफिनेटली यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ. Alright, now let's talk about the lecture. What can be the various combination of the resistors? क्या हो सकते हैं? देखो, मैं आपको बताने वाली हूँ 2, बट इन दोनों से ही मिलकर बहुत कॉम्प्लेक्स जो हैं सर्किट्स बनाए जा सकते हैं. राइट, सो वी विल बी डीलिंग विद द 2 ओनली एंड दीज आर द बेसिक वन. अगर हम उनको स्टडी कर लेते हैं देन वी विल बी एबल टू डील विद ऑल द टाइप ऑफ सर्किट्स. राइट, देखेंगे जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की. ऑलराइट, सीरीज से तो नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट कि भाई इसमें होगा सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक. राइट, मतलब वन आफ्टर द अदर द सीरीज. तो इसमें क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टर. ऑलराइट, दिस इज द रेजिस्टर एंड वन एंड ऑफ दिस रेजिस्टर लाइक दिस वन इज कनेक्टेड टू द अदर वन. ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन जो है ये कनेक्टेड होते हैं एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सीरीज, क्योंकि एक के बाद एक के बाद जस्ट लाइक अ लाइन में हम लोग जब कभी भी क्यू होता है ना तो उसमें एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा, तो इस तरीके से अरेंज होते हैं. राइट, एंड दैट्स हाउ दीज रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज पैटर्न. कैसे भाई, एक के बाद एक. ऑलराइट, एंड दे आर कनेक्टेड. ठीक है, कनेक्टेड कैसे होते हैं, एक टर्मिनल, यू कैन से ये जो पहला वाला रेजिस्टर है उसका जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है सेकेंड रेजिस्टेंस के टर्मिनल से. ऑलराइट, फिर सेकेंड वाले का जो सेकेंड टर्मिनल है वो कनेक्टेड है थर्ड के फर्स्ट वाले से. सो दैट्स हाउ एक के बाद ये 1 to 1 जो है एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं. राइट, तो दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. अब आपको उल्लू बनाने के लिए क्या हो सकता है कि आपको कभी कभी इस तरीके का रेजिस्टेंस दे सकते हैं, मतलब इस तरीके का, लेट मी टेल यू. ठीक है, इस तरीके का भी आपको जो है पैटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको उल्लू बनाने वाली बात क्या हुई, दिस इज ऑल्सो सीरीज, बट आप ये देखेंगे कि देखो यहाँ पर तो एक है पाथ चेंज हो गया है. राइट, यू विल बी सेइंग लाइक अभी तक सीधे जा रहे थे एंड नाउ वी आर गोइंग लाइक दैट. ठीक है, तो करंट इधर जाएगा एंड देन इट विल बी मूविंग हियर, तो फिर यहाँ पर कुछ होगा डिफरेंस, तो यू विल बी से दैट कि भाई सीरीज नहीं हो सकता, बट दिस इज सीरीज, लिटरली दिस इज सीरीज. ऑलराइट, तो इस तरीके से आप होंगे तो सिर्फ नॉर्मल से 2 ही पैटर्न, सीरीज एंड द अदर वन इज पैरेलल, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना वैरायटी हो जाएगा दैट यू विल बी लिटरली कंफ्यूज्ड. सो व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू इज दैट पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए व्हाट इज द सीरीज एंड व्हाट इज द पैरेलल. ऑलराइट, किस तरीके से सीरीज जो है उसको उल्टा पुल्टा बनाकर भी जो है आपको बता सकते हैं. ऑलराइट, जो सेकेंड कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट गोज लाइक दिस. ऑलराइट, अभी आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये देखेंगे ये जो 3 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किए हैं, ये 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो उन सभी का एक टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर और इन्हीं का दूसरा टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर. ठीक है, तो मतलब जब कभी भी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल सब एक साथ कनेक्टेड हो और वही रेजिस्टेंस के दूसरा टर्मिनल्स जितने भी हैं वो एक साथ कनेक्टेड हो, तब हम बोल देते हैं दैट दीज आर द पैरेलल कॉम्बिनेशन और दिस शोज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि दैट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं. देखो, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, दिस इज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि भाई ये कुछ इस तरीके का है.
ऑलराइट, अब आप मुझे बोलो कि यहाँ पे पैरेलल कौन है और सीरीज कौन है। यहाँ पे आपको पता करना होगा, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग, आपको पहले से आइडेंटिफाई करके आना चाहिए व्हाट इज द सीरीज एंड व्हाट इज द पैरेलल। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको किस तरीके से पहचानना है। देखिए हम स्टार्ट किसी भी जगह से कर सकते हैं, आइदर वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आइदर वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से जाएंगे, लेट्स से हम तो नहीं जा सकते बट वी कैन से कि करंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से करंट जाएगा, इट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टर एंड यहाँ पर आने पर यानी इस पॉइंट पर करंट को जो यहाँ से आ रहा था इसके पास अब दो रास्ते हो जाएंगे, राइट। जब कभी भी करंट के पास जाने के लिए दो रास्ते हो जाएं, दैट मीन दो या दो से ज़्यादा रास्ते अगर आ जाते हैं, दैट मीन्स दैट इज द पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैं डॉटेड लाइन में सर्कल कर रही हूँ ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ से इस पॉइंट पर जब वो करंट पहुँचेगा तो करंट के पास टू वेज होंगे जाने के लिए, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ से क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की शुरुआत होगी, ठीक है। अब करंट यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा करंट इस वायर में से ऊपर चला जाएगा एंड थोड़ा करंट इधर चला जाएगा, राइट। अब जब ये वापस आएंगे तो ये दोनों करंट मिलकर इधर आ जाएंगे। नाउ दिस विल रिएक्ट एज अ व्हाट, अ सीरीज। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में है किसके साथ, इसके और इसके साथ, राइट। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कब सीरीज कॉम्बिनेशन है, कब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको ध्यान रखना है, आप क्या करोगे, करंट के पाथ को देखोगे, ठीक है। आप करंट जैसे जैसे सीधे जाते जा रहा है या फिर वो तब तक चल रहा है जब तक उसके सामने टू वेज नहीं आ जाते या फिर दो से ज़्यादा वेज नहीं आ जाते, ठीक है। मतलब वी कैन से कि दो से ज़्यादा वायर्स उसके सामने नहीं आ जाते एंड ही हैव टू डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है। तो तब तक वो सीरीज में रहेगा। जैसे ही करंट के पास दो से ज़्यादा अगर पाथ आ जाते हैं जाने के लिए तो दैट मीन्स वहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट द कॉम्बिनेशन इज सीरीज और द पैरेलल, ठीक है। तो ये है सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन कि भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से हम रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, वी विल बी डूइंग ऑल सच, हम डेरिवेशन करने वाले हैं। अब आप देखेंगे when two or more resistors are connected end to end then such type of combination of resistors is known as series combination. Alright, so you can definitely say that कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक के बाद एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द सीरीज, ऑलराइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो फीचर्स है सीरीज के लिए। व्हाट आर दीज कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है दैट रिमेन्स सेम थ्रू आउट दी सर्किट, ठीक है। तो वी कैन से जो करंट होता है थ्रू ईच रेजिस्टर आर सेम एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर आर डिफरेंट। तो आप लोग कह सकते हैं दैट जो करंट है वो क्या होगा, सेम होगा एंड जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट वुड बी डिफरेंट, ऑलराइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यू शुड नो क्यों करंट जो है वो सेम होगा, बिकॉज करंट को जाने के लिए पाथ मिल रहा है एंड दैट इज द पाथ इट इज़ फॉलोइंग। अब उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा है, उसको बीच में ये नहीं डिसाइड करना पड़ रहा है कि उसे यहाँ जाना चाहिए यहाँ जाना चाहिए। इट डज नॉट हैविंग एनी अदर पाथ, सिर्फ एक ही पाथ है उसके पास। वो प्लस टर्मिनल से निकलेगा, करंट विल गो थ्रू दीज बल्ब्स एंड इट विल एंड इनटू द नेगेटिव। तो इसमें करंट के पास और कोई पाथ नहीं है जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। दैट्स वाई हम बोलने वाले हैं कि पूरा का पूरा करंट वुड बी द सेम, ऑलराइट। पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी चेंजिंग बिकॉज हर एक, हम लोगों ने ये चीज़ पहले ही सीखी थी कि पूरे सर्किट के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम, ऑलराइट। तो वो क्या होगा, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज होता है, डिफरेंट होता है, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू से कि भाई हम जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन से डील करेंगे वी विल बी गेटिंग टू थिंग्स, current is same throughout the circuit or we can say through each resistor current would be the same and V is different, that is potential drop would be the difference,
और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ पे वो डिफरेंट होगा अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम क्या करें, ये जो तीन रेजिस्टर लगे हुए हैं R1, R2, R3, अगर हम इन तीनों को हटाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दे जो कि इन तीनों का इफेक्ट के बराबर हो, मतलब यू कैन से दैट कि जो काम इन तीन रेजिस्टर से हो रहा है, जो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करें या फिर जो कुछ भी हमको फ़ायदा हो रहा है इन तीन रेजिस्टर से, वही फ़ायदा अगर हमें एक रेजिस्टर से लेकर आना है, ऑलराइट, तो वो जो एक रेजिस्टर होगा इक्विवेलेंट फाइनल, जैसे कि हम लोग रिजल्टेंट फोर्स पढ़ते हैं ना, तो रिजल्टेंट फोर्स के अंदर क्या होता है कि भाई जितना भी कैलकुलेशन है, इधर जो भी हमको मिल रहा है, दो तीन फोर्सेस को अगर हम मिलाना चाहें और एक फोर्स बनाना चाहें तो दैट वुड बी द रिजल्टेंट, राइट, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि मतलब इन तीनों की जगह पर हम एक रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं और उसका वही इफेक्ट होना चाहिए जो इनका है, ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलराइट, ये हम लोग चीज़ देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो देखेंगे अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, ऑलराइट, वी हैव टेकन 3 रेजिस्टर्स और वो कौन कौन है, R1, R2 और R3, ठीक है, R1, R2 और R3, ये बात सबको समझ में आ गई, राइट, कि यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, वो कितना है, वो है V एंड दिस इज द टोटल वन। हम एक रेजिस्टर की बात नहीं कर रहे, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज पूरा टोटल V है, ऑलराइट, थ्रू दी सर्किट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोगों को ये बात तो पता है कि करंट जो होता है रेजिस्टर्स में जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो ये जो करंट होता है ये इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, ऑलराइट, तो वी कैन से दैट कि इसके अंदर भी I करंट जाएगा, इसके अंदर भी I करंट जाएगा और R3 के अंदर भी I करंट ही जाएगा, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज I, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग को ये बात पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी डिफरेंट, इससे जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कुछ अलग होगा, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कुछ अलग होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। मानो एज्यूम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो R1 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है और R3 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है, ठीक है, R3 के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3। नाउ यू गॉट V1, V2, V3। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा। ये बात तो हमें पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे करंट कितना है, I होल, हर एक रेजिस्टर के अंदर I करंट है, बट रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। R1 है फर्स्ट वाले में, तो इसका वजह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वुड बी I R1, ठीक है, V1 इक्वल्स टू I R1। ये होगा कब, जब हमने सिर्फ इसके बात की है, लाइक व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट जस्ट दिस, हमने सिर्फ अभी इसी की बात की है, हम सिर्फ R1 के क्रॉस पता करना चाहते हैं, तो ये जो R1 है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलराइट। इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R2 उसमें कितना होगा, दैट वुड बी V2 बराबर I R2,
सिंपल, ठीक है। V2 बराबर I R2, बिकॉज अब हमने बात की है सिर्फ R2 रेजिस्टर की, ऑलराइट। तो इसका मतलब हमने जो है सिर्फ R2 रेजिस्टर की बात की है, एंड दैट्स व्हाट वी गेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। उसमें हम लिखेंगे V3 बराबर IR3। सो वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस। हमें ओम्स लॉ की वजह से जो है 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। मतलब अब हमें पता चल चुका है कि R1 के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के अंदर कितना, मतलब R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, R3 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वी नो ऑल दीज 3। अब हमें ये बात ऑलरेडी पता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का डिफरेंट है। ऑल्सो हमें ये बात पता है कि जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये जो V वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये इसी का सम है। दैट मीन्स जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, जो ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा R1 के पास जा रहा है, थोड़ा R2 के लिए है और थोड़ा R3 के लिए है, राइट। तो दैट मीन्स ये जो V है ये इन तीनों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अगर हम इन तीनों का वैल्यू ऐड कर देते हैं, हम V1 V2 V3 को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है फाइनल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट, राइट। तो नाउ लेट्स राइट दैट कि भाई जो हमारा V है, ठीक है, टोटल वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट, टोटल सर्किट की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी व्हाट, V इक्वल्स टू IR। ऑलराइट, तो दैट वुड बी IR। एंड व्हाट इज दैट, ये जो R आपको दिख रहा है जब हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन रेजिस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द रेजिस्टर। वी कैन से दैट इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके एक ऐसा रेजिस्टर जो हमें मिलना चाहिए, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज को कंबाइन करके जो हमें मिलना चाहिए, वो जो रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसी को बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा, लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग ये बात देख चुके हैं दैट ये जो V है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो V है दिस कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3। बिकॉज हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो तीनों रेजिस्टर में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम उन तीनों का तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड कर देते हैं, सो वी विल बी गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पूरे सर्किट का है, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस। अब हम ये बात जानते हैं कि V क्या है, IR, ऑलराइट, और वी कैन से लेट्स से सीरीज हम S से शो कर देते हैं। V1 जो है उसको हमने क्या लिखा हुआ था, IR1, जो V2 है उसे हमने लिखा था IR2, जो V3 है उसे हमने लिखा था IR3। अब हम क्या करते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, IRS इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया, बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑलराइट, नाउ इट इज कैंसिल आउट। अब बचा कौन, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड दिस इज द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट जो भी हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टर, ठीक है, यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि पूरे सीरीज सर्किट का है। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली तीनों रेजिस्टेंसेस ऐड कर देने हैं, दैट्स इट, ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों ने क्या देखी है, यहाँ पर भी देखी है कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और फिर इसने जो है कैलकुलेशन में हेल्प की। एंड नाउ वी गॉट टू नो कि अगर मैं वो जो RS हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उस RS को अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, इन तीनों को हटा के अगर उस RS को यहाँ लगा दूँ, तो दैट मीन्स आई वुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। मुझे सेम रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे सेम करंट मिलने वाला है, मुझे सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, कब, जब मैं रिजल्टेंट लगा दूँ, ऑलराइट। सो दैट मीन्स हमें इन तीनों को हटाने, मतलब लेट्स से हमें 3 नहीं चाहिए, वी वांट जस्ट 1 रेजिस्टर,
तो अब मुझे वन रेजिस्टर ऐसा ही चाहिए जो कि सेम काम करे जो ये कर रहे हैं, ऑलराइट, सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट किया एंड दैट्स व्हाट वी गॉट कि अगर मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ तो मुझे सेम इफेक्ट देने वाला एक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है, ऑलराइट। दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात करते हैं। एंड आप सिंपली देख सकते हैं, अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड ऑन द थिंग्स, ठीक है, सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है, दैट्स इट, राइट। अब आपको एक और बात मैं बताती हूँ, दैट यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस हम लोगों ने ऐड किए हैं इसमें अभी तो सिर्फ 3 हैं, बट लेट्स से आपको बहुत सारे मिलते हैं, लाइक बहुत सारे, राइट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर जनरल के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, जनरल के लिए हम लिख सकते हैं कि अगर हमें RS कैलकुलेट करना है तो वी वुड बी एडिंग ऑल द रेजिस्टेंसेस, लेट्स से दिस इज द R2, राइट, प्लस R3 प्लस सो ऑन जितने भी हैं Rn तक, मीन्स यू वुड बी एडिंग ऑल द रेजिस्टेंस। कितने हो सकता है आपको 10 रेजिस्टेंसेस गिवन हो, 10 रेजिस्टर्स गिवन हो सकता है आपको 20 रेजिस्टर्स गिवन हो सकता है आपको इनफाइनाइट रेजिस्टर्स गिवन हो। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए इट कैन बी आस्क्ड, ऑलराइट। सो आपको क्या करना है, जनरल यूज करना है, एंड व्हाट यू हैव टू यूज जनरली इज you have to add all the resistances and that's it, alright, that's why you will be getting the series one, alright। तो अब आपको क्या करना है, फटाफट से जो है इसको नोट आउट कर लीजिए ताकि हम फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसी सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। एंड दीज आर द फीचर्स। एक सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टर जितने भी हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड होते हैं तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, you will be getting the current is same in each resistor of the circuit। हर एक रेजिस्टर में the current would be the same because the path is not changing, ठीक है, एक के बाद एक, तो it is going line by line, alright, so you can definitely say that the resistance of the combination of resistors is equal to the sum of the individual resistors। जितने भी रेजिस्टेंस है उन सभी का इंडिविजुअली अगर हम उन सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर दे, सो वी वुड बी गेटिंग द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर वी कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, ठीक है। द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर, जो कि हमने किया दैट कि जब कभी भी हमें डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं उन सभी में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर उन सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वी वुड बी गेटिंग व्हाट, द टोटल फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट, ठीक है, दैट्स व्हाट वी वुड बी गेटिंग। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट व्हाट वी हैव रिटन ओवर देयर। हमने जो लिखा था वो यही लिखा था ना, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। अब आप खुद से मुझे ये बात बताओ कि क्या ये RS बड़ा नहीं है R1 से? R1 से तो ग्रेटर ही होगा बिकॉज R2 और R3 इसके पास ऐसे एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई, दैट्स वाई ये जो RS है वो बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई ये जो RS होगा ये R2 से भी बड़ा होगा और ये जो RS होगा ये R3 से भी बड़ा होगा। मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंसेज हैं
उनसे हमेशा ज़्यादा होता है हमारा जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा, यही RS आपको ज़्यादा मिलेगा R1 से, R2 से और R3, इन तीनों से ज़्यादा मिलेगा हमेशा, ठीक है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें हमेशा ज़्यादा मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल रेजिस्टेंस। ऑलराइट, देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था कि भाई सारे रेजिस्टर्स कैलकुलेट, मतलब उन दोनों का जो वी कैन से टर्मिनल्स हैं, तो वो सभी का एक टर्मिनल दूसरे में सभी का एक टर्मिनल, दैट्स आर कनेक्टेड, राइट। सो वी कैन से लाइक दिस, if one end of each resistor is connected to one point and other end of each resistor are connected to other end, then such type of the resistor is called parallel combination. तो आप देखेंगे इसका जो एक पॉइंट है और इसका जो पॉइंट है, राइट, वी कैन से वन टर्मिनल, तो इन दोनों का वन टर्मिनल आर कनेक्टेड, इन दोनों का वन टर्मिनल आर कनेक्टेड एंड दैट इज टू कनेक्टेड विद दी सेल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, यू कैन से दैट। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यू कैन व्हाट इज द मेन थिंग यू आर गेटिंग इज दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर आर सेम। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है हर एक रेजिस्टर पर वो होता है सेम, ठीक है। लेकिन जो करंट होता है ईच रेजिस्टर आर डिफरेंट। वाई करंट आर डिफरेंट? बिकॉज करंट को अब दो पाथ मिल जाते हैं, दो से ज़्यादा पाथ मिल जाते हैं, तो वो क्या करता है, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। थोड़ा करंट पहले पाथ में चला जाएगा, थोड़ा बचा हुआ सेकंड पाथ में चला जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ थर्ड पाथ में चला जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट, जो कि पिछली बार यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज के साथ हुआ वही सेम टू सेम काम यहाँ पे करंट के साथ होगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ से जो भी करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, राइट, ये वाला करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। सो दैट मीन्स इट वुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, थोड़ा थोड़ा करके दोनों में चला जाएगा, लाइक। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे करंट वुड बी द डिफरेंट, हर दोनों ही रेजिस्टर्स में करंट वुड बी डिफरेंट, ऑलराइट, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग सेम, पोटेंशियल ड्रॉप, दैट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग सेम, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों ने दो रेजिस्टर्स लिए हैं, ठीक है, वी हैव टेकन टू रेजिस्टर्स और वो है R1 एंड R2, ठीक है। नाउ यू कैन से कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच रेजिस्टर, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है वो है सेम, ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज V, ऑलराइट, this V is the potential difference and alright across R1 and R2। क्यों ऐसा है, क्यों R1 और R2 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं एंड दैट्स वाई A और B के बीच में, यानी कि वी कैन से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दिस, ऑलराइट, दैट्स वाई R1 के अक्रॉस B और R2 के अक्रॉस B पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम बिकॉज द पॉइंट्स आर द सेम, राइट। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि इन दोनों का टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, R1 का एक टर्मिनल R2 का एक टर्मिनल A से कनेक्टेड है, R1 का अनदर टर्मिनल R2 का अनदर टर्मिनल B से कनेक्टेड है। तो ये जो A B पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज V, राइट। दैट्स वाई इन दोनों के अक्रॉस भी आपको सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी करंट। अब करंट को क्या हुआ, करंट यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे I वैल्यू है उसकी, ऑलराइट, लेकिन जब वो A पॉइंट पर पहुँचा तो अब इसके पास दो पाथ हैं, राइट, उसके पास I1 भी है और उसके पास I2। अब क्या होगा, R1 वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट चला गया, R2 वाले रेजिस्टर में I2 करंट चला गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो I1 I2 है ये क्या है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं आई विल बी गेटिंग I टोटल करंट, तो दैट मीन्स टोटल करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। तो वी कैन से दैट करंट अक्रॉस, नाउ वी कैन यूज वन थिंग, ठीक है, वी कैन से वन थिंग दैट यहाँ पर ओम्स लॉ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ओम्स लॉ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे R1 I1 एंड I2।
बिकॉज यहाँ पर हमें R1 पता है, हमें R2 पता है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है. द थिंग वी नीड इज द करंट. ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज ओम्स लॉ. ठीक है, फॉर R1. अब हम R1 पे जो है ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी नो दैट V इक्वल्स टू I1 R1 बिकॉज I1 इज द करंट, I1 इज द करंट गोइंग थ्रू दी R1. ठीक है, तो वी कैन से दैट I1 इंटू R1. अब यहाँ पर मुझे अगर I1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी? आई वुड बी राइटिंग V अपॉन R1. ये जो R1 है ये V के नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. राइट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, V अपॉन R1. ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ लगाना चाहूँ R2 के लिए, ठीक है, R2 के लिए अगर मैं लगाना चाहूँगी तो इट वुड बी सेम. वी कैन राइट I2 और R2. ठीक है, तो वी कैन राइट I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड दैट इज द I2, यानी कि I2 की मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना वैल्यू है, दैट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. अब मुझे I1 का वैल्यू पता है, अब मुझे I2 का वैल्यू पता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओम्स लॉ फॉर द होल सर्किट. ऑलराइट, जब हम ओम्स लॉ लिखेंगे फॉर द होल सर्किट, ऑलराइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी कैन राइट V इक्वल्स टू I एंड RP. ठीक है, व्हाट इज RP? RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. राइट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन RP एंड P डिनोट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन. राइट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे RP लिखा है. और जब हम पूरे सर्किट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन I. ठीक है, टोटल करंट की मैंने बात की है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है और टोटल रेजिस्टेंस की बात की है. राइट, तो दैट इज टोटल. ठीक है, जो हम फाइनल सर्किट की बात करते हैं. नाउ लेट्स वी नो दैट कि भाई जो करंट है, व्हाट इज द करंट? जो करंट हम लोग बोल सकते हैं, करंट इन द सर्किट जो हम लोगों ने देखा है वो कितना है? I जो है वो किसके बराबर है? I1 प्लस I2. एंड वाई इज दैट? क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि I को दो पाथ मिल गए थे, दैट्स वाई वो डिवाइड हो गई एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन पाथ एंड द अदर पाथ. राइट, दैट्स वाई वी हैव रिटन I1 एंड I2. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं I का वैल्यू कैलकुलेट करूँ, यानी टोटल I का वैल्यू कैलकुलेट करूँ, आई वुड बी गेटिंग V अपॉन RP. राइट, एज दी I. तो आई वुड बी राइटिंग दिस हियर. तो V अपॉन RP बराबर V अपॉन R1 जो हमने I1 कैलकुलेट किया था एंड V अपॉन R2 जो हमने I2 कैलकुलेट किया था. राइट, अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं V को. जैसे ही हमने V को बाहर लिया है, कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. दैट्स व्हाट वी विल बी गेटिंग. तो V से V कैंसिल, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग 1 अपॉन RP equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Alright, that's what we will be getting and this is the resultant resistance for the parallel combination. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जनरली बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो 1 अपॉन RP का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, आप RP का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जब कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे, व्हाट यू विल बी डूइंग, आप इसे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिखेंगे, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तभी आपको RP यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता चलेगा. राइट, अब आप इसे फटाफट से लिख लीजिए एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स.
चलिए अब हम फटाफट से जो है फीचर्स देख लेते हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर्स होते हैं और सभी को पता होने भी चाहिए। ठीक है, देखेंगे the sum of the reciprocals of the individual resistance is equal to the reciprocal of the equivalent resistance। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम हमेशा 1/RP लिखते हैं, तो मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं पहले से ही, राइट। एंड देन हम लिखते हैं 1/R1, तो मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल प्लस जो सेकेंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल 1/R2, राइट। तो इस तरीके से हम सभी के रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं। ठीक है, the current in the various resistors are inversely proportional to the resistances। higher the resistance of a branch, the lower will be the current through it। that means what I want to tell you is that let's say हम लोग मानते हैं कि देखिए ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, लेट्स से। ठीक है, कि भाई यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जो है वो आ रहा है। अब करंट कैसे डिसाइड करेगा, लेट्स से यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 1 ओम है। ठीक है, अब आप मुझे खुद से बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है? ऑब्वियसली 2 ज़्यादा है, राइट। अब करंट वहाँ से क्यों जाएगा जहाँ पर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा? सही बात है कि नहीं? उसको जहाँ ऑपोजिशन ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई करंट इस 5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इस 1 एम्पियर के अंदर ज़्यादा करंट जाएगा। वी कैन से दैट लेट्स से यहाँ पे चला जाएगा 3 एम्पियर और यहाँ पे चला जाएगा 2 एम्पियर। वाई 2 और यहाँ पे 3, इसमें ज़्यादा क्यों और इसमें कम क्यों? वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, उस पाथ पे उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से वो कम जा पाएगा। लेकिन जहाँ पे उसे अच्छा खासा जो है जाने का रास्ता मिल रहा है, कम उसको ऑपोजिशन मिल रहा है, तो वो वहाँ से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट डिपेंड्स कि भाई जिस भी ब्रांच में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट वहाँ से जाने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड जिस भी ब्रांच के अंदर आपको अगर कम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा करंट जाने वाला है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिस भी ब्रांच के अंदर कम रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट, और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो कम करंट, दैट वुड बी द डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट। अगर दोनों इक्वल होते, लेट्स से यहाँ पे भी 2 ओम होता, यहाँ पे भी 2 ओम होता, तब क्या होता, तो करंट इक्वली डिवाइड होता। ठीक है, क्योंकि अगर उसको बराबर ऑपोजिशन मिल रहा है दोनों ही ब्रांचेस में तो इट वुड डिवाइड इक्वली। ठीक है, देखेंगे थर्ड पॉइंट, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम and is also equal to the voltage across the whole group considered as a unit। तो मतलब potential difference हर एक उसमें सेम होता है and it is the potential difference of the whole circuit। ठीक है, तो ये जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। Now let's talk about a question। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और आपको क्या बताना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। For the equivalent ठीक है, write the order for the equivalent resistance। that means you have to tell the ascending order। ठीक है, स्मॉल से ग्रेटर, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग जो है देखने वाले हैं। सो यू वुड बी राइटिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको कुछ सर्किट्स दूंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको रेजिस्टेंस दे रही हूँ, जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू अ कॉम्बिनेशन एंड दैट कॉम्बिनेशन इज, ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन एंड ठीक है, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन
ऑलराइट, नाउ द बी ऑप्शन फॉर यू इज, मैं इसको जो है नीचे ही बनाऊं, जो आपके पास बी ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यू विल बी गेटिंग दैट कि भाई एक तो है पैरेलल में, ठीक है, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। मैंने आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हैं, 3 रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन है, 3 जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है सभी का, ऑलराइट। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ऑर्डर बताना है, ठीक है, कि किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी ग्रेटर, ठीक है, एंड देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर, ये आपको कैलकुलेट करना है, ऑलराइट। सो यू हैव वेरी मच लेस टाइम, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं सभी का वैल्यू बता देती हूँ कि आपका जो सभी का वैल्यू है दैट इज आर, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर each resistor has R resistance, ठीक है, हर किसी के पास एक ही रेजिस्टेंस है R। अब आपको करना है कैलकुलेट, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कि किसमें जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ऑलराइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट देम वन बाय वन, ठीक है। हम हर किसी का जो है वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ये ऑप्शन है। नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट। ए ऑप्शन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हमें रेजिस्टेंस मिला है पैरेलल, ऑलराइट, दिस इज दी पैरेलल, और हर किसी के पास आर है, आर है, आर है। तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया, व्हाट यू हैव टू डू इज आर इक्विवेलेंट, हाउ टू गेट दैट, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। देखेंगे 1 2 3 वी आर गेटिंग 3, तो व्हाट वी आर डूइंग टू, हम क्या लिखने वाले हैं, 3/r लिखने वाले हैं, सिंपल, ठीक है। तो 3/r डायरेक्टली लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि 1/3 टाइम्स है, तो 3/r हो गया। देखो मुझे आर ई क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आई हैव टू रेसिप्रोकेट, ठीक है। तो मतलब मुझे आर ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी r/3। क्यों मिली मुझे ये वैल्यू, क्योंकि मैंने दोनों को जो है रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है, दोनों को पलट दिया है, दैट्स व्हाई आई विल बी गेटिंग आर ई क्यू, जो कि आ रहा है r/3। तो हमारा ए ऑप्शन में तो आ रहा है r/3, ठीक है। तो हम फटाफट से जो है जाके यहाँ लिख देते हैं दैट वी विल बी गेटिंग, जस्ट अ सेकेंड, वी विल बी गेटिंग व्हाट, r/3, ये वैल्यू हमें मिली है ए ऑप्शन के लिए। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर द बी ऑप्शन, दिस इज अ वेरी मच सीरीज। तो सीरीज में तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई, सीरीज में तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। बी में जो है सीरीज है, ये है आर, ये है आर, ये है आर, तो व्हाट इज द आर ई क्यू, वो हो जाएगा सिंपली आर प्लस आर प्लस आर, यू विल बी गेटिंग 3r, सिंपल। तो हमें सेकेंड ऑप्शन के लिए मिल चुका है क्या, हमें मिल चुका है 3r, तो दैट इज वी आर गोइंग टू राइट 3r, ठीक है। अब हमें ये दो कॉम्बिनेशंस हैं, ये है कॉम्बिनेशन जिनके अंदर सीरीज भी है और पैरेलल भी है। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दैट, 2 पैरेलल 1 सीरीज, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दैट। सी ऑप्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन, जिसके अंदर हमें मिल रहा है 2 पैरेलल एंड इसके साथ में 1 सीरीज। देखो जब कभी भी हमें ये सिचुएशन मिलती है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें मतलब 1 बाय 1 स्टेप्स लेकर चलना होगा। पहले हम कैलकुलेट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन वी विल बी एडिंग दैट टू सीरीज,
ठीक है। तो अभी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ पैरेलल, और पैरेलल में कौन है, आर और आर, तो आई वुड बी राइटिंग 1/r प्लस 1/r सिंपली। ठीक है, तो मुझे जो आर पे मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है, 1/rp जो मुझे मिलने वाला है वो मिल जाएगा 2/r सिंपल। और अभी मैं क्या करूँगी, दोनों का रेसिप्रोकल, तो rp वुड बी हाउ मच, r/2। ठीक है, ये तो मुझे मिला है rp का वैल्यू। नाउ लेट्स कैलकुलेट। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो दोनों का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है जो कि सिर्फ पैरेलल में है, अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कैसा बन जाएगा, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, ये तो है r और ये है ये r/2। ठीक है, तो मतलब व्हाट यू विल बी गेटिंग कि ये जो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा है, अब मुझे इसकी जगह मिल गया है ये r/2, ऑलराइट, एंड r। अब ये दोनों सीरीज में है, सिंपली ऐड कर दे इनको, तो मुझे फाइनल Req जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है r/2 प्लस r। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग 3r/2। ठीक है, सिंपली एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया है, तो हमें मिल जाएगा r/2 प्लस r, दैट मीन्स 3r/2। तो हमें फाइनली c का वैल्यू क्या मिला है, 3r/2। लिख दे वहाँ फटाफट से कि मुझे c का क्या मिला है, 3r/2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे दो सीरीज में है और फिर उसके साथ एक पैरेलल में है। हम उनकी बात करते हैं, d की बात करते हैं। ठीक है, d की बात करते हैं, और d हमें कैसे है, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है सीरीज में दूसरा रेजिस्टेंस, और इसी के साथ कनेक्टेड है तीसरा। तो ये r, ये r और ये r। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सीरीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पहले मैं क्या कौन सा लेने वाली हूँ, पहले मैं ये वाला जो है कैलकुलेट करने वाली हूँ। ठीक है, तो RS जो सीरीज वाला मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1/r 1/r, दैट मीन्स सॉरी नॉट 1/, वी विल बी गेटिंग जस्ट एडिंग में r और r, इन दोनों को जस्ट हमें ऐड कर देना है, तो वी विल बी गेटिंग 2r। अब ये जो सर्किट है ये किस में चेंज हो चुका है, ये जो सर्किट है वो किस में चेंज हो चुका है, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है, सिंपल चेंज हो गया है। कैसे, ये बन गया है 2r और ये बन गया है r। अब हमें डायरेक्टली इनका बस पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होगा, सिंपल। तो हम लोग यहाँ लिखने हैं कि भाई फाइनल Req मुझे मिलेगा 1/Req, राइट। तो इट वुड नॉट बी दिस, तो मुझे मिलने वाला है 1/Req बराबर 1/2r। आई वुड बी राइटिंग दिस इन द रेसिप्रोकल, और 1/r। सो मुझे मिलने वाला है 1/Req बराबर, फटाफट से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2r, 2r से 2r कैंसिल, आई वुड बी गेटिंग 1 इन द न्यूमरेटर, प्लस r से r कैंसिल, आई वुड बी गेटिंग 2। सो व्हाट इट इज, 3/2r। सो 1/Req मुझे कितने मिलने वाला है, 3/2r मिलने वाला है, राइट। अब मैं सिंपल दोनों का रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो मुझे Req की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 2r/3। सो दिस इज दी फोर्थ वन, जो हमें फोर्थ वाला जो डी ऑप्शन है उसका जो रेजिस्टेंस मिला है 2r/3 रेजिस्टेंस जो है मिला है। नाउ लेट्स राइट दैट 2r/3। सो लेट्स राइट 2r/3। अब आपने इन चारों का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया ना, टेल मी दैट कि इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है इनमें, क्या r/3 है, क्या 3 है, क्या 3r/2 है, या फिर 2r/3 है। सिंपल, इसको तो कोई भी बोल सकता है। देखेंगे सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 3r इज सबसे ग्रेटर है, ऑलराइट। अब जो सेकंड फैक्टर है वो हम देखना चाहते हैं, कौन सा है, 3/2r या फिर 2r/3, कौन सा फैक्टर है। डेफिनेट सी बात है 3/2, तो यू कैन गेट 3/2r। फिर उससे छोटा कौन हुआ, 2r/3। फिर उससे छोटा कौन हुआ, बचा हुआ हमारा r/3 सिंपल। ठीक है, अब आपको पता चला कि भाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, हमने यही तो देखा 3r इज द ग्रेटेस्ट, और 3r कौन है, 3r सीरीज का है,
तो आपको जब कभी भी ऐसे कंपेयर करने की बात बोली जाएगी तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि जो सीरीज में होगा, अगर रेजिस्टर्स जो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल हैं एंड सभी का रेजिस्टेंस बराबर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद पैरेलल में सबसे कम, ये दो ही हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। जो है सीरीज उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और जो है पैरेलल उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, और बाद में जो भी बीच के कॉम्बिनेशंस आते हैं वो सब बीच की वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत 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 ईजी है और अच्छी भी है, और लेट मी टेल यू, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखेंगे। लेट्स से ये एक तरीके से आप नोट बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और वो ये है कि अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेट मी राइट दैट, एन इक्वल रेजिस्टर्स, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों का रेशियो निकालना चाहे, कई बार क्वेश्चंस पे रेशियो निकालने के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो वो कितना होगा, वो होगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस उसका स्क्वायर। सिंपल, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आप डायरेक्टली अपना आंसर कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि क्या ये सचमुच सही है या नहीं, ठीक है। इसको मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। आई एम टेकिंग 4 रेजिस्टेंस, लेट्स टेक 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो लेट मी टेक द 4 रेजिस्टेंसेस, और मैं इन 4 का सबसे पहले क्या लेती हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया है पैरेलल, इसमें मैंने वैल्यू सेम है, इक्वल रेजिस्टेंस है चारों के चारों। देखो n इक्वल, ये n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लिए हैं 4, ठीक है, 4 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लिए हैं, और इन सभी का रेजिस्टेंस है सेम टू सेम, R R R R, ठीक है। यही कॉम्बिनेशन जो है मैं सिंपली सीरीज में भी बना देती हूँ फटाफट से, ठीक है। तो ये मैंने 4 रेजिस्टेंस ले लिए, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टर्स ले लिए हैं और कॉम्बिनेशन में लगा दिए हैं। ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, फटाफट फटाफट मेरे साथ निकालते चलो। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहती हूँ तो व्हाट इट वुड बी, R E Q, हमेशा रेसिप्रोकल का ध्यान रखेंगे। R E Q कितना होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो देखेंगे 1 2 3 4, वी विल बी गेटिंग हाउ मच, 1/R की Q आपको मिल जाएगा, व्हाट यू विल बी गेटिंग, 4/R। सो आपको फाइनल R E Q की वैल्यू मिल जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझे मिल जाएगी R/4, ठीक है। तो ये मुझे मिल गई है R E Q, लेकिन ये R E Q किसका है, पैरेलल का, तो इसका R P बना दें। तो ये जो R E Q है, मुझे P का वैल्यू मिल गया है, मतलब जब मैंने पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कितना मिला, ठीक है, ये हमें पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। जब हम सीरीज में कर रहे हैं तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो अगर मैं इसका जो है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालना चाहूँगी तो आई वुड बी गेटिंग R प्लस R प्लस R प्लस R, तो आई वुड बी गेटिंग 4R, ठीक है। मुझे RS का वैल्यू पता चल चुका है, मुझे RP का वैल्यू पता चल चुका है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर मैं RS/RP कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंसेज है उसका स्क्वायर। यानी कि मेरे पास अगर 4 रेजिस्टर्स थे तो आई शुड गेट 4 का स्क्वायर, राइट, यही ट्रिक कहती है। तो मतलब मेरा आंसर होना चाहिए 16 अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि सचमुच में ऐसा ही है कि नहीं, ठीक है। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट RS/RP। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, 4R डिवाइडेड बाय R/4। अब ये है डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन में है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी वुड बी राइटिंग 4R मल्टीप्लाइड बाय 4/R,
हमने क्या किया, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स हाउ वी शुड डील विद द फ्रैक्शंस, है ना। r से r कैंसिल और 4 4 जा कितना होता है 16। तो क्या इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बजाय अगर मुझे ये बात पता है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं एंड मुझे ये पता है कि सभी रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम है, अगर ये चीज़ मुझे पता है तो आई कैन कैलकुलेट दिस रेशियो RS अपॉन RP ईजिली जस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड स्क्वायरिंग दैम। ठीक है, तो मतलब जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी आई वुड बी गेटिंग द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज द ट्रिक, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। अगर कभी भी आपको रेशियो पूछा जाएगा रेजिस्टेंस का, जब कभी भी वो पैरेलल में है एंड जब कभी वो सीरीज में है, ऑलराइट, अगर इनका रेशियो आपको पूछा जाता है तो आप इस ट्रिक से आप डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट द थिंग्स इज आपको ये बात पता होना चाहिए देयर हैज़ टू बी इक्वल रेजिस्टर्स। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस वाले होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये बात पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो आज जो हमने चीज़ें देखी हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ें आज हम लोगों ने कैलकुलेट की हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू डू द होमवर्क, द डी पार्ट। आपको चेक पॉइंट डी कैलकुलेट करना है पूरा। आपको चेक पॉइंट के साथ साथ इलस्ट्रेशंस डी जो हमारा है जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का देख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का देख रहे हैं, तो डी पार्ट आपका होमवर्क है। आप अपनी बुक्स में से डी पार्ट होमवर्क जो है करें और सबमिट करें थ्रू दी गूगल क्लासरूम्स। दैट्स ऑल आई वांट टू नो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड अगर आपको लगता है दैट यू कैन प्रिपेयर यूजिंग दीज वीडियोज़, यू कैन दैट स्प्रेड दैट आउट। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ताकि वो भी प्रिपेयर कर सके, और डेफिनेटली सबको एजुकेशन का हक है, राइट। तो दैट्स वाई यू शुड डू दैट टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।